Hi, good evening, everyone. Welcome to a new episode of Edination TV, powered by Global School Awards. And we are just waiting for Mr. Indranil Ghosh to connect with us. It might take a few seconds, so I will really appreciate your patience on this. Yeah. Hello. Hi, good evening, sir. Good evening. How are you, sir? I am fine. How are you? I'm great, sir. Thank you. So today we are live with Mr. Inder Ghosh, who is CEO and founder of Northern Football Academy, Pragraj, Uttar Pradesh. Sir, I would like you to lead the audience who are joined with us today. Uh, just a moment. Actually, I am fixing it. My mobile. Just give me a second. Sure, sir. Sure. Not an issue, sir. It's fine, sir? Yeah. Is it Yeah. visible clearly? Yes, sir. Everything is fine. Yeah. Thank you. Yeah. So, sir, I Okay. would like you to greet the audience who are joined with us. Okay. This is Indranil Ghosh, physical education teacher in Army Public School, Prayagraj, in Old Kent, and also founder, CEO, and head football coach of Northern Football Academy, Prayagraj. Great, sir. So it's our really privilege to have you with us for today's topic, that is India closer to gender equality? A look at women in sports, and we will also cover some areas of such discrimination. Like once a vestige of male domination, there is now room for women in this arena, but is not portrayed same as in the light of their male counterparts. Because as we talk about gender inequality, it starts from the very basic, that is the upbringing of the child. So what are your views about it? Being a sports coach or a sports teacher, right from the beginning, when I started my professional career as a sports teacher, I have seen and I have struggled a lot regarding women in sports. So, True. I will be starting it from the Yes. childhood or you can say the grassroots level. आप लोगों ने सभी जानते हैं कि घर पे अगर एक भाई बहन होते हैं तो भाई को या छोटे बच्चे को जो है उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी और लिबर्टी मिलती है जबकि घर की जो छोटी लड़की होती है उसको उतनी लिबर्टी घर से नहीं मिलती है. So that is the Right. problem right from the beginning, what we all in the society used to face. So True, in sir. this, yes, yes, हाँ बताइए मैम. हाँ, ये जैसे हमने भी देखा है, once a girl child is born, she is just treated as a marriage material. Because वो सिर्फ वेट कर रहे होते हैं, okay, she'll be turning 18 or 19 and she'll be getting married. That's it. Yeah, so this is the problem which I was facing. Even we all in all many of the fields used to face. अब हम लोगों को what I feel is that there should be no gender differentiation nowadays or in this country. For this, what starting from the childhood, Right. what we have to look after is that we should treat equally both a male and female in the society right from the beginning. Right, sir. Right. Yeah. And not only in this arena, people are discriminating like, okay, if there is a boy, he is given cars and he's giving balls, right? But when it comes to a girl, she's always given dolls. Why so? Like, Yeah, this is the problem which we are all facing. Actually, let's see, right from the our elders, we have learned कि लड़कियां जो हैं वो चूल्हे चौके का काम करेंगी और true. लड़के जो हैं वो बाहर जाके घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, That's दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं.
So Correct. this should not be there right now, as in each and every field you have seen women are making our mark, and they are treated in most of the field. You can take in any field, engineering field or medical field or sports field or any top priority field. We have got such a talent, women Correct. have got such a talent that they should be given a chance, so that everybody should recognize this gender and should treat them equally. True, sir. Yeah, and coming to the second level, which is schools and colleges, the education, the platform where someone's career is made. And I guess we don't have facilities, proper ambience to support the girls in sports, right? So, what are your views upon? Okay, it's a good question. Thank you, and let me answer about this. In a school, you have seen in every school, whether it's ICSE board school, CBSE board school, or any state board school, we have seen. Even I have also suffered. We have got tournaments, which are the primary tournaments. You have heard about inter-house tournaments: red house, Right, yellow house, blue house, green house. We have seen outdoor and indoor tournaments for boys, for right, sub junior category, for junior category, for senior category, but there is nothing like for girls. right, true. Not a single tournament is there for girls. And being a sports teacher, I have introduced in our previous school where I was working, I have given a system, rules and regulation I have changed. Just like when I had conducted a cricket tournament, inter-house That's cricket tournament in between four houses. So there was rule कि in each team four girls will play. राइट या यही होता है ना, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जब हम लेते हैं, दैट ब्रिंग्स अ बिग चेंज. से इसी तरह इफ अगर हम स्कूल लेवल पे इफ वी विल नॉट इनकरेज दीज गर्ल्स, देन हाउ you are expecting a Olympic medal from a female gender from our country? वो तो ट्रू. गिने चुने टैलेंट तो ये दीज टैलेंट, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक, एमसी मैरी कॉम, ये तो इनबिल्ट टैलेंट है, ये तो इनके अंदर टैलेंट थी, इसलिए आगे आ गए. लेकिन हमें तो अब ये निकालना है कि टैलेंट तो भरे पड़े हैं इंडिया में, बट हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू chalk those out, and we have to encourage them, we have to give them a platform. For एग्जैक्ट. what for that we have to just keep on our eyes open, and we have to give them a platform. कहाँ से मिलेगा? प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको स्कूल लेवल से. एक बच्चा ट्रू. 365 दिन में अगर 270 दिन स्कूल खुला रहता है, तो they used to learn lot of things, not only in studies. They will learn etiquette, they will learn discipline, they will learn how to manage the things. They will everything they will learn from school. So what we have to do is that uh, we have to catch them younger, we have to catch them from school only, and for that the best platform is give them opportunities. Give them राइट. opportunities in Olympiads, give them opportunities in essay competitions, science exhibitions, give them a platform for separate platform for girls, or a mixed platform in sports also. Why या should ट्रू. it is not mandatory for every principal or school or every board doesn't do it? सबके लिए कंपलसरी क्यों नहीं करती है कि गर्ल्स के लिए भी टूर्नामेंट होना चाहिए? गर्ल्स के लिए राइट. सीबीएसई ने किया है. सीबीएसई हैज डन अ वंडरफुल जॉब कि राइट. इन लोगों का कुछ गेम्स में देयर आर क्लस्टर टूर्नामेंट्स फॉर गर्ल्स सेपरेटली, बट इफ यू विल कंपेयर इट विथ बॉयज टूर्नामेंट, 10 टूर्नामेंट अगर बॉयज के होते हैं तो एक होता है गर्ल्स का. 10 टीमें गर्ल्स. अगर कोई टूर्नामेंट में अगर बॉयज के जाते हैं तो इन कंपेरिजन टू दैट ओनली वन गोज फॉर गर्ल्स. अब द एग्जैक्ट. प्रॉब्लम इज दैट क्लस्टर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सीबीएसई, बट टीम कैसे बनेगी? टीम तो तभी बनेगी ना जब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, जब लड़कियां प्रैक्टिस करेंगी. तो लड़कियां स्कूल में प्रैक्टिस करने के लिए इफ दे डोंट हैव द फैसिलिटी in their school, in their respective school, then how will be they doing the practice and all?
Yes, and moreover, there are no female coaches. Even I Female have. coaches, yeah, this is the second point which I was about to come. Second coaches is that ki female female coaches, female sports teachers और female sports experts की बहुत ज्यादा कमी है. क्यों कमी है? क्यों? क्योंकि अगर स्कूल में किसी भी फीमेल जेंडर को कभी बचपन से उसको बढ़ावा नहीं मिला खेल के लिए, तो आगे जाके वो अपना करियर कैसे बनाएगा? कैसे वो करियर बनाएगा? जब करियर नहीं बनाएगा तो हमको कोई स्पोर्ट्स टीचर नहीं मिलेगा, हमको कोई फुटबॉल कोच नहीं मिलेगा, और फिर हम क्रिटिसाइज करेंगे कि इंडिया फ्रॉम माय साइड नाउ आई विल से कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट. True. इट्स अ कॉन्टिनेंट. Yeah. आप सिर्फ यूपी में देख ले, देयर आर 72 डिस्ट्रिक्ट्स. हाँ जी, right. So New Zealand, Australia, we will compare it to that. China has got more than 5,000 stadiums in the whole country, national stadiums, top class stadiums. Even their 7-star and 5-star hotels के top floor पे they have got their athletics tracks for practice. Right. So Yeah. ये जो कंडीशन है हमारे इंडिया में अभी है ही नहीं. इंडिया में हम लोग अपॉर्चुनिटीज देते ही नहीं है. जब कोई लड़की 10 साल की, 8 साल की, 6 साल की, 12 साल की, when she will be not be coming out from their home, respective home, on the ground in the evening or any court or any sports field, तो how we will be encouraging it? जब हमको encouragement नहीं मिलेगा, भले वो मेल कोच से मिले, लेकिन जब वो आएंगे नहीं तो हमको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम आएगी कि जब हमको कोई खिलाड़ी नहीं मिला तो कोच कैसे मिलेगा? कुछ कैसे मिल जाएगा? एग्जैक्टली है ना. ये तो हो गया स्कूल्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी अपब्रिंगिंग का. देयर आर फ्यू पीपल हु कम आउट ऑफ इट, दे फेस एवरीथिंग. वो आ जाते हैं सोसाइटी में, फिर वहां पे प्रेशर्स आ जाते हैं. देयर आर सोसाइटी बाउंडेशंस आ जाते हैं, कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस बहुत आ जाती हैं. So because of all those things, some people are not easily coming into the sports. So yeah, my next point is that what is your say on society foundations and cultural restrictions? ओके, सोसाइटी फाउंडेशन और कल्चरल में सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है एक बच्चे के लिए कि देयर फर्स्ट कोच इज देयर पेरेंट्स. True. If parents will support, then obviously the people residing with their relatives, their family members, their friends, all will come and support. So the first thing what I want to say is that society तो बाद में आएगा, पहले पेरेंट्स का सपोर्ट, पहले आपके रिलेटिव्स का सपोर्ट, उस फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. और वो तभी आएगा जब हम खुद समझेंगे स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस, या एक फील्ड का, या एक लड़की जब बाहर जाएगी, कोई भी फील्ड में जाए, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, तो हमको इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए. तो इंपॉर्टेंस को तब समझेंगे जब आप खुद एक बार मौका लोगे. यू हैव टू टेक अ रिस्क, लेट हर गो, लेट हर डू द थिंग्स, देन यू विल अल्टीमेटली द रिजल्ट्स विल कम आउट आफ्टर सम डे. राइट, एग्जैक्टली. अब जैसे क्या है, मीडिया को ले लें हम, अगर सोसाइटी में देख रहे हैं, मीडिया इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस राइट नाउ. बट द थिंग इज दैट कि मीडिया प्रमोट ही नहीं कर रही है विमेन स्पोर्ट्स को. ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है. आपको बता दें, अभी इंडिया की वुमेन्स की क्रिकेट टीम इन कंपैरिजन टू मेंस की क्रिकेट टीम, आप किसी भी आम जनता से पूछ लेंगे, दे विल नेम ऑल द 16+4 जो उनके टीम के ऑफिशियल्स हैं, दे विल नेम देम. बट इफ यू विल आस्क हु इज द कैप्टन ऑफ T20 इन इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, और हु इज द कैप्टन ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन्स टीम ऑफ इंडिया, हार्डली एनीवन विल एबल टू टेल. अभी तो पूरी टीम की तो बात ही करना छोड़ दें. आप कंपैरिजन कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स. हाउ मेनी एडवर्टीजमेंट इंडियन मेंस टीम आर गेटिंग एंड हाउ मेनी एडवर्टीजमेंट इंडियन वुमेन्स टीम आर गेटिंग. ट्रू. या अब तो फ्रॉम लास्ट 1-2 years जब वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, इंडियन टीम लॉस्ट इन द फाइनल्स, बट थोड़ा सा सोशल मीडिया में वो एक्टिव्स आए, एंड थैंक गॉड टू ऑल द सोशल मीडिया, स्पेशली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, कि these players, these national players, women players, all are active in social media, and now at least
we can say कि some of our strength of population are recognizing them. तो True. Yeah. सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है. अगर सेंचुरी इज मेड बाय अ मेल cricketer in international tournament, then he is getting name, fame, money, everything. In comparison Right. in comparison to that, if some woman cricketer is also doing the same thing, so Mm-hmm. I request all the media to just do the thing in parallel. सेम चीज वही चीज करनी चाहिए उनके साथ भी, जो कि हमारे इंडियन मीडिया में कम Male. है लेकिन कम है. अब इंडियन मेंस की किसी भी ओलंपिक्स की भी बात कर लें, ओलंपिक्स में भी आप जाते हैं, हम करते हैं काम, अब जाके लोग जान पाए हैं एमसी मैरी कॉम को, वो कौन है, अब जाके जान पाए हैं सानिया नेहवाल को. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इतना ज्यादा इंटरनेशनल लॉरेल्स दिलाया है कंट्री को कि अब उन लोगों को सब लोग जानते. फिर भी मैं कहूंगा कि ये प्रॉब्लम कहां से आती है कि अगर मीडिया थोड़ा सा अगर एफर्ट करके आप उनको भी थोड़ा सा दर्जा दें, थोड़ा सा आप उनको भी पॉपुलराइज करें. हाँ, एफर्ट कर रहे हैं तो भी पॉपुलराइज करिए, और कोई आपको टैलेंट दिखता है तो भी आपको उनको आगे लेके आना है, बिकॉज उनसे उनको हिम्मत मिलती है, उनसे उनको मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है. तो द थिंग इज दैट कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है. आई फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, आपका ये टीवी, आपके इस चैनल से आई रिक्वेस्ट ऑल द प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि अगर वो मेरी आवाज उन तक जा रही हो, सो दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बट वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द वुमेन्स. राइट. जैसे कि कल्चरल फाउंडेशंस जब हम देखते हैं, व्हेन वी सी, वी हैव एन एग्जांपल ऑफ सानिया मिर्जा. Just because she was from a Muslim community, she was really opposed for playing in short clothes. They were not saying that okay, men are also wearing, because it is their attire. She was judged, was speculated, and she was harassed for it. आप साइना नेहवाल की बात कर रही हैं मैम. वी हैव गॉट plenty of examples like this. Right. Saina Nehwal, Sania Mirza, Saina Nehwal. You see in outdoor games, badminton, football, lawn tennis, the attire which we have to wear, every single individual has to wear, is shorts and t-shirts. So the society is not acceptable. Not only we will be telling the Muslim qawm कि सिर्फ वही प्रॉब्लम होती है. हमारे यहाँ और भी ऐसे लोग हैं आज के जमाने में जो कि अपने घर के बच्चे को जब वो खेलने जाती हैं, ग्राउंड में उतरती हैं, तो शॉर्ट्स में अगर वो खेल के आती हैं या शॉर्ट्स में वो वापस आती हैं, तो 4 लोग उन्हीं के एरिया के खड़े होके बात करने लगते हैं. Right. और दे यूज्ड टू पास कमेंट्स. सो दीज आर द नेगेटिव थिंग्स. और इंडिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है अभी. सो अब क्या होगा अगर ऐसे क्रिटिसिज्म होगा, तो अगले दिन से उस टैलेंट का, उस लड़की का, उस बच्ची का खेलना बंद हो जाएगा. क्योंकि जो मोटिवेशन उसको घर से, सोसाइटी से चाहिए, शी इज नॉट गेटिंग दैट. क्यों? Not at all. Even not at all. I have formed the Allahabad University women's football team way back in 2009. That time, when I was going to start this campaign, I myself has faced numerous problems, because at that point of time, if I am not wrong, I have got all 30 girls, those who were doing graduation and undergraduation and post graduation. So I had an advertisement in the newspapers through Allahabad University, and all 30 girls were reported, and they started the training with me. Within 3 days, after 3 days, I used to face the music from their parents. प्रॉब्लम आने लग गई थी कि इसमें फुटबॉल खेल के क्या होगा, इंटर यूनिवर्सिटी खेल के क्या होगा, आगे क्या फ्यूचर है, और फिर आपके यहाँ शॉर्ट्स पहन के क्यों, लोअर पहन के क्यों नहीं खेला जाता.
खेल होता है। अब हम एक अब कोई पेरेंट्स आके ऐसे पूछता है तो वो दे आर द लेमैन, उनको ये नहीं मालूम है कि व्हाट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन इन ईच एंड एवरी गेम। तो अब Yeah, उनको ये exactly. चीज समझाना, उनको कन्विंस करना। अब मम्मी कन्विंस हो गई हैं तो पापा कन्विंस नहीं हो रहे हैं, पापा कन्विंस हो गए हैं, मम्मी पापा कन्विंस हो गए हैं, तो घर पे गए तो देयर ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर, दे Yeah. रिफ्यूज। कई बार तो ऐसे हुए कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे खिलाड़ी नॉट ओनली इन प्रयागराज, कई और शहरों में भी मैं बता रहा हूँ जहां मेरा एक्सपीरियंस है, जहां मैंने कोचिंग किया है, कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी के पेरेंट्स मान गए, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं मानते तो घर से मना हो जाता है। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी। या राइट, वही है ना सर, ये तो है नेवर एंडिंग है ना। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी सोसाइटी की थिंकिंग नहीं चेंज होगी, हमारे चेंजेस नहीं आएंगे। जी। क्योंकि देखो, क्योंकि एक पॉइंट और भी आ जाता है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, विच इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। दैट इज द बिगेस्ट पार्ट के लोग प्रेफर करते हैं कि स्पोर्ट्स में मत जाए विमेन। क्यों? बिकॉज एज कंपेयर टू मेन, though they are thought, women are thought okay, they are very capable, they can do enough, but उनको फिर वो उतना वेज नहीं मिल रहा as compared to their male counterparts। हाँ, पढ़न। तो इस जो मेल काउंटर पार्ट है जी। उसके कंपैरिजन में फीमेल्स को बहुत कम सैलरीज मिल रही हैं इन स्पोर्ट्स। हाँ जी। या स्कूल्स की बात कर रहे हैं, स्कूल क्या, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, जैसे इफ वी हैव गॉट फ्यू टैलेंट्स और फ्यू प्लेयर्स और मेनी प्लेयर्स आर देयर इन एवरी ईच एंड एवरी गेम, जूनियर प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स, दोज हु हैव रिप्रेजेंटेड देयर स्टेट इन द नेशनल लेवल। But in terms of job, if you will say, so we have got job opportunities for male genders in railways, AGUP, Sahara, then ITI, then many other ye ONGC is there, then Bharat Petroleum is there. They are giving job opportunities for male counterparts. Then in comparison to female counterparts, अब female में अभी तक what we have got कि there are few organizations, railways are giving good job for female in all categories, in all sports. Then AGUPs में भी vacancies, sorry, AGs में आ रही है, ऑडिटर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, they are also giving। तो अब एक दो से तो होगा नहीं, मैंने कहा ना, इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट नॉट अ कंट्री। अब इतने खिलाड़ी हैं, इतने वी हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट्स hovering around in the India, in our country. So if they are not getting a proper settlement in their life, why should they play sports? वो स्पोर्ट्स क्यों खेलेंगे जब उनको कुछ मिला ही नहीं मौका? और सबकी घर के माली हालत अच्छी नहीं होती है कि somebody will go for BPEd, MPEd and then other sports courses and they will be settling themselves, because for doing sports courses also you must have bank balance। एग्जैक्टली, या क्योंकि हाँ, इक्विपमेंट ये हर घर की बात, हर घर में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा कोई टैलेंट है, नेशनल खेला है, जूनियर इंडिया खेला हुआ है, खेली हुई है, सॉरी, जूनियर इंडिया खेली है, सीनियर इंडिया खेली हुई है, और एजुकेशनल से सिर्फ इंटर पास है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज कहीं जॉब वैकेंसी है ही नहीं उनके लिए स्पोर्ट्स कोटा के लिए। तो हमको और भी, जैसे ये कंपनीज हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनको फीमेल काउंटर पार्ट्स के लिए सोचना होगा। दे हैव टू मेक देम सेटल्ड सो दैट उनको देखते हुए हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, दे विल बी इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। Yes, exactly. And like this was very informative, sir. But we have discussed the points of discrimination. कि okay, these are the parts, यहाँ पे discrimination हो रही है. So what could be the solution? Like according to you, आपको क्या लगता है कि कहाँ changes लेकर आएंगे तो कुछ change आएगा? सबसे पहले तो मैं कहूंगा, सबसे पहला चेंज जो ड्रास्टिक चेंज होगा वो होना होगा कि मेंटेलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। मैं ये नहीं कहता, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग पर्सनली एनी फैमिली, बट टू बी प्रैक्टिकली इट इज वेरी problematic from the parents and their grandparents ki if they will not support, a coach can't help it out। एक बच्चा अगर ग्राउंड पे आएगा ही नहीं तो उसको हम ट्रेनिंग क्या देंगे? ट्रेनिंग क्या दोगे? एग्जैक्टली, ट्रेनिंग पे भेजने वाला कौन है? माँ बाप हैं,
या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो पहले तो उन माँ बाप को और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को ये बात समझने की जरूरत है कि अगर हमारी लड़की, घर की लड़की, अगर उसका इंटरेस्ट है और उसको लग रहा है कि हाँ वो खेल सकती है, तो व्हाई नॉट टेक अ चांस। और And हाँ, और अगर उसको मौका मिल रहा है तो फिर फोकस करवाएं, उसको मोटिवेशन दें। और सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ जाके ज्वाइन करा दिया और वो खेल रही है, वो आ रही है। यू हैव टू, जैसे हमारे स्कूल में एक पेरेंट्स जाते हैं हर महीने अपने बच्चे के लिए, देयर इज अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग, hmm, तो उसी तरह फॉर स्पोर्ट्स फील्ड ऑल्सो देयर शुड बी अ पेरेंट्स कोचेस मीटिंग एवरी मंथ, और आई कैन hmm, से इन एवरी 15 डेज, कि हमारी बच्ची कैसी प्रैक्टिस कर रही है, खाने पीने में क्या करना है, रेस्ट कितना चाहिए, एवरीथिंग। एक सिंगल सिंगल, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक एक चीज right, जरूरी है। हाँ जी, एग्जैक्टली, तो राइट। पहला तो है ग्रैंड पेरेंट्स, फिर बात आती है हमारी फ्यूचर में कि हमको कैसे, कौन सा गेम और कौन से कोच या कौन से इंस्टीट्यूशन को हमें जाना है, वो सेकेंडरी बात आती है। लेकिन पहले हमको ध्यान रखना है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स या रिलेटिव्स की तरफ से फुल सपोर्ट मिले। Exactly, sir. Right, right. Even I'm really like flattered to hear your views, क्योंकि आज के टाइम में ना कोई करता नहीं है. Like you have taken all the initiatives as you told. Like way back, like a decade ago, you started something related to women. Because football is such a stream, बहुत कम लड़कियां आती हैं, but you took that initiative, which is really appreciated. I, being a girl, is really, I'm thankful to you on behalf of everyone, because see, all the points you have discussed, right? Even I and all the team of Education TV, we think that such issues like this, they should be spoken out. First of all, people should talk about gender inequality. लोग बात ही नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हमने बात नहीं करनी। वो पहली है, बात नहीं करते हैं। देन देयर आर सो मच मिथ्स अराउंड कि अगर ठीक है, अगर कोई स्पोर्ट्स में जा रही है, इफ अ गर्ल इज प्लेइंग एनी स्पोर्ट, शी इज सो फ्रेजाइल दैट हर शी माइट बी एट डेंजर। तो ये जो हमें मिथ्स हैं, इनको चैलेंज करना पड़ेगा। और भी हाँ, चीजें हैं। इसके लिए तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, कहीं पर भी कोई चीज 10 चीज अच्छी हो रही है तो 4 चीज पीछे आपको क्रिटिसिज्म के मिलेंगे, आपको ये चीज मिलना ही मिलना है। बट व्हाट वी हैव टू डू, पेरेंट्स हैज टू स्टिक ऑन देयर डिसीजन। क्योंकि अगर एक ऐसा एरिया है जहां से घर की एक ही लड़की जा रही है प्रैक्टिस को, तो 4 लोगों की आंखें बाहर आ जाती हैं कि अरे उसकी घर की लड़की ऐसे जा रही है, वो वहां प्रैक्टिस करने जाती है, वहां खेलने जाती है, अकेले वहां टीम के साथ जाती है, घर का कोई नहीं जाता। तो ये बहुत सी नई चीजें हैं। तो ये चीजों पे अब पेरेंट्स के कान पे ये बात आ ही जाती है कहीं ना कहीं से कि हमारे घर के बारे में, हमारी बच्ची के बारे में ऐसी बातें होती हैं। तो ये कहते हैं ना कि दुनिया कुछ भी बोले, अगर पेरेंट्स को बिलीफ है अपने बच्चे पर और बच्चे को अपने पेरेंट्स पे सपोर्ट है, तो उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। Exactly true. Yeah, it was lovely talking to you, sir, about this issue. And I hope all our viewers might have seen this. And we have seen this. So the thing comes, the society needs to get changed. Their mentality, their orthodox thinking needs to be changed. Yes, Yeah. of course. And it should be at the earliest, जितनी जल्दी हो सके स्कूल लेवल पे हो। बिकॉज देखिए, हम तो सबसे पहले कहेंगे कि अगर मेरा बस चले या मेरे स्कूल में अगर ऐसा हो सके तो गर्ल्स के लिए पैरेलली अलग से एक उनका इंटर हाउस का कंपटीशन से ही हम लोग स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज दिस इज द बेसिक नीड और प्राइमरी स्टेज फॉर अ गर्ल टू एटलीस्ट लर्न। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट स्पोर्ट्स। और जहां पर कोएड स्कूल्स हैं वहां पर भी आजकल गर्ल्स जाती हैं कॉम्पिटिशन्स में भी। देयर आर वेरियस न्यूमरस कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन इज देयर, डांस कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन इज देयर, कल्चरल प्रोग्राम्स आर देयर, एंड साइंस ओलंपियाड आर देयर। then there are lot of other things are there which are taking place. अब स्कूल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लड़कियों के मामले में कोई भी जल्दी बात नहीं करना चाहता, वो अवॉइड करते हैं
क्यों? क्योंकि या जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब कोई जिम्मेदार। कंपटीशन होगा तो उसमें टाइम लगेगा। हम्म। सुबह 10 बजे का कोई टीम गई हुई है एक ही शहर में, और उसको रात को 8 बजे तक आते आते 8 बज गया, तो 10 हम्म। क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं, पेरेंट्स की चिंता शुरू हो जाती है। जबकि या सेम जगह पे अगर कोई लड़का जाता है तो उतनी चिंता नहीं होती, अगर 6 से 8 बज गए तो भी उतनी चिंता नहीं होती है, और उनके पेरेंट्स उतना पूछते नहीं है। और या कोई लड़की अगर कंपटीशन खेल के 6 बजे की जगह 8 बजे आ रही है, ऑब्वियस सी बात है कि चिंता भी बढ़ जाएगी, परेशानी भी बढ़ जाएगी, और टेंशन भी बढ़ जाएंगे। फिर कोच जो होगा उसको 10 नहीं 100 क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए तैयार रहना है। या ट्रू। हाँ जी, वही है। मतलब दिस या इट वाज सो लवली हैविंग यू विद अस। दिस वाज रियली अ वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग, बिकॉज ये चीजों के बारे में डिस्कस करना ही एक स्टेप है टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, स्पेशली इन स्पोर्ट्स। या यस मैम। so thank you much, sir. It was lovely having you. Thank you so much for your time, sir. थैंक यू। Yeah, thank you, sir. Okay. थैंक यू, बाय, टेक केयर। Yeah, you too, sir.